Hello dear students, today we will see the projectile motion. Okay. So what is projectile motion? Projectile motion is particular case of curvilinear motion of a particle along the curve in vertical plane under gravity. Okay, like this. When particle is projected with some initial velocity u, then that particle follows the path under gravity. Okay, that path is curvilinear motion. Okay, so that is the projectile motion. So projectile motion is the type of motion in which particle moves along the curve in vertical plane under gravity. Okay, so in projectile motion particle undergoes two types of displacement, that is horizontal and vertical. Okay, there is one horizontal motion that can be considered uniform motion and vertical motion under gravity. Okay, so this velocity when the particle is projected in the air with some initial velocity which is inclined to the horizontal plane at angle theta. Okay, so here is the highest point where velocity v is 0. Okay, so this is u cos theta and here is u sin theta. Okay, and there is one acceleration due to gravity, that is g, which is 9.81 meter per second square. So here is some velocity, at this point velocity is 0, here is some velocity. Okay, sorry, here the velocity in this direction. So vertical component up to this point, vertical component will be in upward direction, and beyond this point vertical component in the downward direction. So this is the projectile motion. So in projectile motion we will see the trajectory, equation of trajectory. Okay, so what is equation of trajectory? Now consider the motion from A to point P. Suppose here is the projectile and this is x. Okay, so x यानी क्या, distance. So what is that distance? Distance is velocity into time. Okay, ux into time. So what is ux? Ux is u cos theta into t. So t is equal to x upon u cos theta. Right, now we have to find out the equation of trajectory. Now consider the motion from A to B. Okay, by considering motion from A to B, there is one kinematical equation, S is equal to ut minus half gt square. Okay, ut minus half gt square. So here we have to consider vertical motion. Why vertical motion? Because trajectory क्या है, ये path of trajectory है. So what is path? The path traced by the particle is known as the trajectory. ये जो line दिख रही है इसको कहते हैं trajectory. Okay, vertical motion of particle under gravity. So vertical component of initial velocity will be, यहाँ पे क्या आएगा, uy आएगा. So y क्या रहेगा, A to B जो distance है वो y, this vertical distance. Okay, this is y. So this y, uy क्या रहेगा, u sin theta. So value of t is here x upon u cos theta minus half g, again t की value x square upon u square cos square theta. Okay, so y is equal to u कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x tan theta माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो एग्जाम में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर पूछते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. तो आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वो याद रखना ही पड़ेगा. अगर आपको ये याद नहीं आता है तो आपको ये काइनेमेटिकल इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा. ए टू बी आपको वर्टिकल मोशन कंसीडर करके, फिर वर्टिकल मोशन में वर्टिकल डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, वर्टिकल वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है सब वो कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसमें जी भी आता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में आपको इसको अच्छे से फिट करके रखना है. y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर है.
अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट, देर आर सम डेफिनेशंस और टर्म्स विल सी इन प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टी, वो भी एक काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके फाइंड किया हुआ है. वो आपको डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं. टू यू साइन थीटा अपॉन जी. ओके, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, अगर वेलोसिटी दी हुई रहेगी, एंगल दिया हुआ रहेगा, तो आप ये फार्मूला है, इसमें u और थीटा की वैल्यू पुट करके आप टाइम फाइंड कर सकते हो. ठीक है, फिर आपको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज. सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग. अगर यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे आके वो लैंड हुआ है, तो इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट में जो डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी, साइन 2 थीटा अपॉन जी. ओके, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी मैक्सिमम रहेगी. तो मैक्सिमम कब रहेगी? आर मैक्स. मैक्सिमम कब रहेगी? जब ये थीटा 45 डिग्री रहेगा. ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू इसमें 45 पुट करनी है, तो ये आएगा साइन 90. साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, तो इट विल बी यू स्क्वायर बाय जी आएगा. ओके, नाउ देयर इज मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स. मैक्सिमम हाइट यानी क्या? हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल एट मैक्सिमम अल्टीट्यूड और एलिवेशन, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम हाइट. उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, आपको ये 4 फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे. ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो फॉर्मूला है विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस, ओके, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा. सॉरी, देखिए अगर गलती हो गई तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अब ये आपको ध्यान में ही रखना है. तो ये जो इतने सारे फॉर्मूले हैं, इसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे ही. अगर आप इतने भी फॉर्मूले अच्छे से, मगर सॉरी रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, तो आप रट के जाते हो, ये भी रॉन्ग वर्ड है. ठीक है, आपको ध्यान में रखना है और इसको जाके आंसर शीट पे उतारना है, रफ पेज करके आपके सुपरवाइज़र से पूछ के क्वेश्चन पेपर आने के बाद. ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं. ठीक है, ये साइड में मैंने फॉर्मूले जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, एक पेज पे जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे सारे फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं. ठीक है, और आपको प्रॉब्लम्स जो है न्यूमेरिकल्स एक एक करके सॉल्व करना है, तब आपको ये प्रॉब्लम सॉरी फॉर्मूले जो है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम. यस, ए गोल्फर हिट्स द गोल्फ बॉल फ्रॉम पॉइंट ए न्यूमेरिकल है ये, फ्रॉम पॉइंट ए विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AB, ओके, एंड मैक्सिमम हाइट टू अटेन. दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन December 19 फॉर 6 मार्क्स. 6 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, आपके पास फॉर्मूले है, आपको A to B डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी R फाइंड करना है. R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. वैल्यूज पुट कीजिए. यू कितना है 50 स्क्वायर, साइन 2 थीटा की वैल्यू है 25, जी इज़ 9.81.
ओके, सो आर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 50 स्क्वायर इंटू साइन 50 डिवाइड बाय 9.81, इट इज़ 195.22 मीटर, 195.22 मीटर। यस, नो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ठीक है, एच आर मैक्स और एच मैक्स में फ़र्क है। आर मैक्स एच मैक्स में फ़र्क है। एच मैक्स इसका एक ही फॉर्मूला है, आर के दो फॉर्मूले हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यू स्क्वायर, यू कितना है 50 स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज 25 इंटू 2 इंटू 9.81, ठीक है। सो एच मैक्स इज इक्वल टू 50 स्क्वायर इंटू साइन 25 square divide by 2 into 9.81, it is 22.75 मीटर, ठीक है। ये एक न्यूमेरिक हो गया, बस आपको फॉर्मूला याद में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और एक न्यूमेरिकल लेंगे हम, a ball thrown by a player from 5 meter above the ground level, ठीक है, 5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो कि पॉइंट सपोज ए है, और यहाँ से एक बॉल थ्रो कर रहा है प्लेयर, क्लियर्स ए 25 मीटर हाई वॉल, क्लियर्स ए 25 मीटर हाई वॉल, ठीक है, प्लेस्ड 100 मीटर अहेड ऑफ द प्लेयर, ठीक है, जो मतलब क्या, ये वॉल प्लेयर से 100 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज 60 डिग्री दिया हुआ है, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, जैसे आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट, दो टाइप की हाइट दी हुई रहेंगी, ठीक है, और आपको वेलोसिटी या एक्स की वैल्यू पूछी होगी या थीटा पूछा होगा, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज़ करना है, y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नहीं थीटा करेंगे थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या रहेगा, y, व्हाट इज y, द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ जहाँ पे आपको पूछा है, ठीक है, ये हाइट क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है, तो y वो रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये, x यानी क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है, g 9.81 है, x अगेन 100, u हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो y, अभी
जब ऊपर जाएगा ये तो हम लेंगे प्लस, जब नीचे आएगा y तो माइनस रहेगा, ठीक है। अभी y का वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जितनी हाइट है उसके अबव जा रहा है तो वो प्लस आएगा, तो वो आएगा 20। जैसे 20 ये 25 है, उसमें से 5 माइनस कर दिए तो वो 20 बचता है। x इज़ 100, tan 60 माइनस g इज़ 9.81 इंटू x इज़ 100 स्क्वायर अपॉन 2, u फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा इज़ 60 डिग्री। तो हम u फाइंड करेंगे। ये आता है यहाँ, ये टर्म को हम इधर लेके गए, क्या आता है -153.2 इज इक्वल टू माइनस, ये देखो ये क्या आएगा 9.81, ये सब कैलकुलेशन करना यू छोड़ के, ठीक है, इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू cos 60 तो ये आएगा 196,200 अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, ओके। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये u यहाँ पे यू स्क्वायर इधर लेके जाएंगे और ये 196,200 अपॉन 153.2 है, तो u की वैल्यू इससे फाइंड करेंगे, आंसर डिवाइड बाय 153.2, इट इज़ 35.78 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आंसर मिल गया। अभी रिसेंट जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लेंगे यहाँ पे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस 3 इयर्स क्वेश्चन आपको लेने हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसमें जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स है वो आपको सब सॉल्व करने हैं, ओके। नाउ विल टेक वन ऑफ देम। A golf player hits the ball from point A with velocity 45 meter per second. meter per second at an angle of 20 degree with the horizontal. At an angle of 20 degree with the horizontal. With the horizontal. Determine whether ball will pass over the 12-meter high tree placed at 80 meter from A. ठीक है, ये A पॉइंट है, यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है, ओके। तो ये हाइट सपोज y रहेगी, y दिस इज़ y। उन्होंने पूछा है कि ये गोल्फ जो है वो इतने हाइट वाले मतलब 12 मीटर जो हाइट है ट्री की वो उसको पास करेगी या नहीं, ठीक है। 80 मीटर डिस्टेंस के पर उसने प्लेस की हुई है ट्री, वो यस ट्री फिर से प्रॉब्लम पढ़ती हूँ। ए गोल्फ प्लेयर हिट्स द बॉल फ्रॉम पॉइंट ए विद द वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड at an angle 20 degree with the horizontal. Determine whether the ball will pass over the 12 meter high
ट्री प्लेस्ड एट 8 मीटर फ्रॉम ए कंसिडर ग्राउंड टू बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब कि आपको ये y पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन्होंने ट्री की हाइट दी हुई है 12 मीटर, तो उन्होंने क्या पूछा है कि 12 मीटर हाइट का ट्री वो गोल पास कर रहा है कि नहीं। अगर y की वैल्यू 12 मीटर से ज़्यादा आती है, इफ़ y इज़ ग्रेटर दैन 12 देन इट इज़ पासिंग दैट ट्री। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट मीन्स y लेस दैन 12 इट इज़ नॉट पासिंग द ट्री, राइट। तो हम पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इट इज़ x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, y इज इक्वल टू x कितना है 80, tan 20 माइनस g इज 9.81 इंटू x इज 80 स्क्वायर अपॉन 245 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20। सो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। एटी tan 20 माइनस 9.81 इंटू 80 स्क्वायर, सॉरी एक और ब्रैकेट डालना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2 इंटू 45 इंटू 45 इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 20। सो y इज़ 11.56 मीटर। ठीक है, मतलब क्या इट इज़ लेस दैन 12 मीटर। सो एज बॉल और गोल्फ shall not pass 12 मीटर ट्री। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, इसके लिए 1 मार्क रहता है जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है, जो मैंने फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिख के दिए थे वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये सिंपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, और एक बात मैं इसमें बताती हूँ, अगर कोई हाइट है, सपोज़ ये हाइट है 12 मीटर और यहाँ पे आपको 5 मीटर ये हाइट है। ठीक है, यहाँ से ये पास हो रहा है, तो आपको y जो लेना है y, तो 12 माइनस 5 कितना आएगा 7, लेकिन वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये 7 है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये आपको माइनस इतना ध्यान में रखना है। इफ़ इट इज़ गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप then it will be plus. Okay, if it is going from top to bottom then it will be minus. ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो 2-3 लेक्चर में, मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम का लेक्चर लेके वो यूनिट फिनिश हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।